why am I teaching pranayama? Why pranayama? Many of you know it is 2002 onwards that I started talking to people, sharing my thoughts, views, perspective with people. For a long time I did what I would call soothsaying. Okay, you call it aura reading, you call it whatever else you want. I would still categorize it as soothsaying. And thereafter I got into training people for the corporate as well as personal coaching. But in all these years what I did realize is that कितना भी ज्ञान दे दो, knowledge only travels with you a short distance. After that, it may or may not be with you. It is dependent on how much you have practiced it, how much you remember it, how much you have worked upon living it. So there are so many variables. It may not go a long way with you. Then I had this experience a couple of years ago when I went for the Kumbh Snan. Now this is the previous one, Kumbh in Allahabad. And I entered the cold water there. And the moment I entered the cold water, it was freezing cold. I forgot everything. I forgot everything about everything. I couldn't remember anything at all. It was so cold. एक भी मंत्र मुझे याद नहीं आया. जो मंत्र मैंने बचपन से सीखे थे, बचपन से मैं बोलते आया हूँ, उनमें से एक भी मंत्र मुझे याद नहीं आया. तो उस दिन एक बात समझ में आई. When the push comes to a shove, ज्ञान साथ नहीं देने वाली. तो मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ जो परस्पर उनके साथ चले. The second level after information and knowledge, the second level comes to muscle memory. Okay, lot of ancient crafts, martial arts, dance, they are all about muscle memory. Most of our practices are about muscle memory. So that's another level where one could benefit in the long run because they travel a long time. Yeah. Finally, what was with me in that cold water experience? What got me back to my balance? What got me back to my semblance was the breath. Only when I stabilized my breathing did I become stable. तो उस दिन एक बात समझ में आई. नॉलेज कुछ समय तक आपके साथ चलेगा. मसल मेमोरी कुछ और समय तक आपके साथ चलेगा. लेकिन ये जो प्राण है, श्वास, योर ब्रेथ, it is going to be with you till the very last, till your very end. Okay? तो और कुछ सीखने लायक है भी फिर. तो इस सवाल को लेके मैंने जब खोज खबर करी तो बहुत सारी सच्चाइयाँ, lot of realities emerged, and that is why and that is when I decided that this is what is worth sharing with people. ज्ञान तो बहुत है मेरे पास देने को, and I will be posting a whole lot of online courses, but this is something I want to offer to each one as a gift. Okay, for people who know me to be indulgent, you know, there are many people in this group today who know that I have been a smoker for more than 3 decades, and I have enjoyed smoking tobacco in every possible form, and I have gone beyond tobacco as well. Alright, now a person like me who has never had any problems indulging in नशा, वो आपको प्राणायाम सिखा रहा है. एक तरफ देखा जाए तो ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वास्तविकता पहचाने तो मेरे से बेहतर कौन बता पाएगा कि इसमें नशा कितना है. एक योगी मिले थे
जब मैं केदारनाथ जा रहा था तो एक योगी मिले थे. अब वो नागा साधु थे, ये थे, वो थे, अघोरी थे, डोंट आस्क ऑल दैट, इट्स नॉट इवन इम्पॉर्टेंट. योगी मिले थे और चाय की दुकान में मैं बहुत थका हुआ था. आई वॉज गोइंग अप हिल एंड आई वॉज एब्सोल्युटली डेड टायर्ड एंड आई सॉ दिस गाय सिटिंग इन अ टी स्टॉल. And I also sat in one of the tables that were offered there and ordered for a cup of tea. And this guy was busy with his chillam. And usually I am quite friendly with these chaps. So I offered him a cup of tea. I mean a breakfast sized glass of tea. And which he accepted readily. Tea arrived, I was sipping my tea. I know them so well, I also ignore them a bit. So you don't look at them with too much curiosity. ज़्यादा आँखों में आँखें मिला के देखना, ये सब अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट वो उनका मुंह का ना उनको जगह मिल जाती है. खैर, इस साधु को कोई ऐसी मैंने क्लू तो नहीं दी, लेकिन ही डिडंट वेट फॉर अ क्लू, ही जस्ट स्टार्टेड. मैं जानता हूँ कि तू क्या सोच रहा है. मैंने कहा, ओह, दिस इज द यूजुअल स्टफ. यू नो, आई मीन, यू डोंट ट्रैवल ऑल द वे टू केदारनाथ इफ यू आरंट सीकिंग समथिंग, राइट? सो इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग टू से. इट्स लाइक कोल्ड रीडिंग ऑफ द योगीज. दे विल से, क्या दुख है बच्चा, बता. ऑब्वियसली यू आर नॉट इन केदारनाथ बिकॉज यू आर डैम हैप्पी. दैट टाइम यू गो टू वैष्णो देवी, यू डोंट गो देयर. ठीक है ना? वहाँ मन्नत पूरी होने के बाद कोई नहीं जाता, मन्नत मांगने जाते हैं. तो वहाँ कौन जाएगा? दुखी आत्मा जाएगी. सो क्या दुख है बच्चा, ऑल दीज आर यू नो कोल्ड रीडिंग्स. दे जस्ट गिव यू दैट पोक एंड दे वांट यू इन्वॉल्व इन दैट कन्वर्सेशन. आई इग्नोर्ड ऑल ऑफ दैट, बट ही डिडंट स्टॉप देयर. ही सेज, मुझे पता है तो क्या पूछ रहा है. नाउ दैट्स व्हेन आई गॉट क्यूरियस. अच्छा भाई, तो इतना अंतर्यामी है तो खुद ही बता दे कि मैं क्या पूछना चाह रहा था. तो बोला, तो यही सोच रहा है ना, बाबा अगर वाकई में बाबा हैं, अलख निरंजन हैं, तो इस चिल्लम की क्या आवश्यकता है. सो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, आई बर्स्ट आउट लाफिंग. आई सेड, या, दैट वाज द क्वेश्चन. सो ही सेज, सच ये है कि अभी जो चिल्लम मुझे जहाँ तक पहुँचाएगी, उसके बाद मैं 6 महीने तक वहाँ बिना चिल्लम के पहुँचने की कोशिश करता हूँ. मैंने कहा, हाँ, ये कैसे? बोले, तुम्हारे सांसों में सारा नशा. अब ये तो बहुत साल पहले हुआ था, बट देन व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट जीवन का नशा इन सांसों में ही है, तो मुझे लगा यार ये काम तो सुंदर करना बनता है. चाहे दुनिया कुछ भी सोचते रहे तुम्हारे बारे में, चाहे उन्हें लगे कि अरे एक योगी ही तो है जो प्राणायाम सिखा सकता है, थ्रो ऑल ऑफ दोज मिसकॉन्सेप्शंस, मिथ्स आउट ऑफ द विंडो एंड यू डू व्हाट यू थिंक इज राइट. सो हियर आई एम स्टार्टिंग ऑफ ए प्राणायामा. आई कॉल इट एन इंक्वायरी इनटू द साइंस ऑफ ब्रीदिंग. I was even preparing a super video. I'll still prepare it and post it so that everybody can watch it. It didn't happen in a hurry, but it will happen sometime, right? तो क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में? अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये अभी मैं भूमिका बांध रहा हूँ. एक इंट्रोडक्शन है, बातें ज़रूरी हैं, टू पुट एवरीथिंग इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, राइट? I have learnt n number of techniques for many years. Experimented, studied. When I say studied, take it seriously. डूब के अध्ययन करने को मैं स्टडी बोलता हूँ. उससे कम में मैं कोई काम नहीं करता, मुझे नहीं मज़ा आता. तो अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने स्टडी किया, मतलब यकीन मान लो कि नॉर्मल इंसान जिसको स्टडी बोलता है उससे 10 गुना बेहतर, मतलब मैंने डूब के कोई काम किया होगा तभी मैं बोलूँगा मैंने स्टडी किया. सब कुछ करने के बाद भी ना कोई ऐसा कोई जादू वादू घटा नहीं, सच बात है. एंड जैसे कंटेम्प्रेरी सिखाते हैं उससे कोई जादू होने वाली भी नहीं है, यकीन मान लो. उनमें तो कोई मुझे जादू नज़र नहीं आई. तो जिसमें खुद का नशा अभी तक, मतलब जिसको
जिसके खुद में नशा नहीं आया वो दूसरे को क्या नशा दे पाएगा? सो द साइंस ऑफ ब्रीदिंग इज व्हाट आई began to explore, found a lot of truths about it, which can be transmitted as an experience to you. Not gyan, not information, not some vague imagination which might give you a fleeting experience of Om Shanti, bliss, peace. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. Not like that. But something which actually makes that happen for you. प्राणायाम से वो मुमकिन है. ये जब मैंने जान लिया तो फिर मैंने तय किया कि अब इसे दूसरों तक पहुंचाने का समय जैसे ही आएगा, I will do that. Okay, so that's how pranayama and me started. Okay, so let us start the first one. सीधा आप कैसे बैठे हो, कैसे खड़े हो, कैसे लेटे हो, आई डोंट वांट टू आस्क राइट नाउ, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस प्रोग्राम में डूज एंड डोंट्स बहुत बाद में आएंगे लेकिन बहुत बाद में आएंगे. और हम कोई भी जो भी नॉन आदर्श है, आदर्श मतलब आइडियल्स, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे. ठीक है, क्यों नहीं करेंगे अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा. डोंट वरी, राइट? ओके, सो व्हाट यू डू, वेदर यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग और सिटिंग इन द चेयर, द फर्स्ट थिंग यू डू इज, इसको बोलते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है तो, सो व्हेन यू फोल्ड योर इंडेक्स फिंगर राइट हियर अंडर योर थंब, इसको बोलते हैं वायु मुद्रा. इसके बड़े कमाल की चीज़ है ये वायु मुद्रा. इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग देख लेना. बहुत बहुत मस्त चीज़ है ये. मतलब ऐसी रामबाण चीज़ मेरे हाथ में, जिसके अलावा मुझे कई चीज़ें चाहिए नहीं होंगी, बट उससे ज़्यादा नहीं बात करूँगा अभी. वायु मुद्रा बना लिया, और ये जो जगह है ना नोज़ की, ये यहाँ दबाना है, यहाँ नहीं दबाना है, यहाँ दबाना है. यहाँ क्यों दबाना है ये बाद में बताऊँगा, अभी नहीं, अभी पहले सीख लो. ये थंब को यहाँ रख लिया और ये नोज़ अब बंद हो गया आपका. अगर आप इससे सांस लेने की कोशिश भी करोगे ना, सक्शन क्रिएट होगा, सांस अंदर नहीं जाएगा. राइट करके फिर आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से, तो अभी मेरा राइट हैंड राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको सांस अंदर लेना है. डीप ब्रीथ करोगे तो एक बार करके देखते हैं. आपने डीप ब्रीथ किया, ठीक है. अब आपने पेट भरा या छाती भरी मुझे नहीं पता. यूजुअली women have a problem breathing from the stomach. Men find it much easier to breathe from the stomach. क्या कारण है मुझे exactly नहीं पता, but there are some social reasons and there are some physiological or psychological reasons as well. Okay, we will get into that later, but the ideal method of breathing is filling your stomach with it. I will demonstrate it in a few minutes. Okay, कि कैसे हो सकता है किसी के लिए भी, बट वो ज़रूरी है, वो आइडियल है. ठीक है, तो अगर आप चेस्ट ब्रीदर हैं, डोंट बॉदर अबाउट इट राइट नाउ. इफ़ यू आर अ स्टमक ब्रीदर, मतलब आप जब सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलता है, छाती नहीं फूलती है, पेट फूलता है. अगर ऐसा हो रहा है तो आप स्टमक ब्रीदर हैं, और छाती फूल रही है तो आप चेस्ट ब्रीदर. ठीक है जी. अब करना क्या है, जब आपने सांस अंदर खींच लिया, आपको लगेगा पूरा भर गया, ठीक है ना, वहां मैं कहूंगा कि एक बार और जोर लगा के सांस भर लो. तो हमने क्या करना है, अब मुझे लग रहा है, मैं तो बोल रहा हूं, आप तो सांस रोक के रखो. ठीक है आप सांस रोक के रखो. लगा कि यहां भर गया, अब यहां एक बार और खींच दो अंदर को. You know, like you are, snorting some other powder. Okay, you imagine what you are snorting. Anyway, so जब आप भर लोगे ना, अब आप पूरी तरह से प्राण वायु से भर चुके हैं. यहाँ तक बात समझ में आ गई. तो
एक बारी और करेंगे और फिर जब मैं बोलूँगा तो होल्ड करेंगे आप। तो व्हेन यू आर फुल ऑफ ब्रेथ, सांस पूरा भर चुका है, तो आप सांस को अंदर रोक लेंगे। कब तक रोकेंगे? जितना आप कंफर्टेबली रोक सको। अब कंफर्ट का मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक इजी कंफर्ट होता है, एक डिफ़िकल्ट कंफर्ट होता है। तो आप आज डिफ़िकल्ट कंफर्ट तक रोकेंगे, ठीक है? थोड़ी सी अपने बाउंड्रीज को थोड़ा सा हम धक्का मारेंगे, बस, ज़्यादा नहीं, बट कंफर्ट मतलब टफर कंफर्ट, राइट? सो वंस यू डन दैट, देन आई विल टेल यू व्हाट नेक्स्ट टू डू, राइट? ओके, सो वायु मुद्रा बनाया, इस पॉइंट पे अपने थंब को रखा, आंखें बंद कर लो। मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी सबके पास। आंखें बंद कर लो और सांस को वहीं रोक दो जहां है, भरा हुआ स्थिति में। और जब लगे कि यार अब नहीं हो रहा, अब निकालना ही निकालना है, तो एक मंत्र सिखा रहा हूं, इस मंत्र के साथ बाहर निकालना। शंभो महादेव। तो जब देव बोलोगे तो और कुछ नहीं बचना चाहिए, सांस नहीं बचना चाहिए। तो जो लोग पेट से सांस ले रहे हैं, तो जब आप पूरी तरह से महादेव बोल के ख़त्म करेंगे तो पेट आपको बिल्कुल अंदर की ओर खिंच जाना चाहिए। तो अब और कुछ बचा नहीं, तो सब आपने निकाल दिया। तो ये सबसे पहला प्राणायाम हम सीख रहे हैं। इसका भी थोड़ी देर में नाम बताऊंगा, इसका प्रयोजन बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए एक बारी और कर लेते हैं, ठीक है? सो वायु मुद्रा बनाया, बेस ऑफ द राइट नोस्ट्रिल आपने यहाँ से बंद कर लिया इसको, और फिर आपने शंभो महादेव। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, यू डोंट गेट एक्स्ट्रा मार्क्स for holding it longer than other people, so you should not even bother about मनित अपना ऑडियो बंद कर दे बेटा। यू शुड नॉट बॉदर अबाउट हाउ मच ड्यूरेशन, वो ज़्यादा कर रहा है मैं कम कर रहा हूँ। वैसे तो अच्छा है कि हम अपने अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, तो ये कंपटीशन जो है ना, बचपन से जो सीख के आए हैं हम लोग, उसकी अब गुंजाइश थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना? सो डोंट कम्पीट विद अदर्स, इट्स नॉट अबाउट देम, इट इज़ अबाउट यू, राइट? नाउ वी विल डू इट वन मोर टाइम, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज दिस, ऑलराइट? So one more time. शंभो महादेव। अब इसी प्राणायाम को या किसी भी प्राणायाम को थोड़ा सरल करने के लिए और करेक्ट फॉर्म में करने के लिए, हमने अभी जो किया वो गलत फॉर्म है, ठीक है? या गलत क्या है इसमें कुछ चीज़ें गलत हैं। हमने ना, पता नहीं हमें बीमारी लगी है कि हम सारे काम मुश्किल वाले करते हैं, आसान काम हमें करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कभी नंबर नहीं मिलते, स्टार नहीं मिलता, वेरी गुड नहीं मिलता, एक्सेलेंट नहीं मिलता, इसलिए हम आसान काम नहीं करना पसंद करते, मुश्किल काम करना पसंद करते हैं। अभी भी हमने सांस लेने में भी मुश्किलें कर ली हैं। कैसे? आसान क्या होता? अभी आपने जब सांस लिया, आवाज़ आई थी ना, सांस लेने की आवाज़ आई थी, तो एक आध्यात्मिक गुरु चाइना में रहे, लाओ त्सु के नाम, डाविस्ट गुरु लाओ त्सु, जिन्होंने ताई ते चिंग लिखी, वो ये कहते हैं कि इफ यू आर ब्रीदिंग एंड करेक्टली, you will be as silent as silence itself.
लॉन्ग। तो मतलब आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आवाज़ आने का मतलब है ब्लॉकेज है। आवाज़ आने का मतलब है आप जोर लगा रहे हो, आप जोर लगा रहे हो और सांसें तुम्हारी चल रही हैं इतने साल तक, मजाक कर रहे हो क्या? तो हमको ना बेकार में मेहनत करने की आदत है। या सांसों को चलने दो, कैसे चलेगी सांस? तो उसको आसान करने के लिए क्या करना है, हमें थोड़ा बहुत बदलाव अपने शरीर में, अपने अंदर लाना पड़ेगा। व्हाट इज़ दैट? तो सबसे पहला काम करो, ऊपर की ओर देखो, और इतना ऊपर देखो कि अपने आप योर जॉ विल ड्रॉप ओपन। डोंट ट्राई टू क्लोज इट, ओके? दिस इज नॉट एन एटिकेट क्लास. This is about being loose and natural and learning to breathe correctly, right? So, as you look up, your jaw will drop. And now, slowly bring your head down such that your lips close, not teeth, only lips close. Now, place your tongue in the soft portion of your mouth, upper mouth. जहाँ दांत खत्म हो रहे हैं वहाँ रख लो। ये आपका सबसे रिलैक्स्ड पोस्चर है। इस पोस्चर में जब आप सांस लोगे, अभी देखो ऑलरेडी बहुत शांत हो गया सांस। ये चेंज करना है आपको, ये चेंज लाना है। तो अभी आप क्या करेंगे, फिर से हम शंभो करेंगे। अब इस बार आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपको, मेरे को तो नहीं आ रही है, आपको आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपके सांस के खींचने की, राइट? तो शंभो महादेव। अब ये प्राणायाम पूरा होता है। ये कौन है भाई? अभिमन्यु अंटल। अब ये प्राणायाम पूरा होता है पहला। अब इसको नाम नहीं दिया हमने, इसको हम अब नाम देने वाले हैं। नाउ जो शंभो महादेव से कंफर्टेबल नहीं है वो अपना मंत्र चाहे तो बदल सकते हैं, ठीक है? ये मतलब कोई शास्त्र अनुसार, वेद अनुसार वाला मंत्र नहीं है। ये मैंने चूज़ किया, वन ऑब्वियस रीज़न, गले में टंगा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? दूसरा रीज़न है कि दिस मंत्र हैज़ ऑल द फोनेटिक components to exhale completely, fully. So that is why I have chosen this mantra. There is nothing more technical to this. But, so if you change your mantra, which you can, make sure that the mantra you choose has similar phonetic qualities. And it aids you, allows you, helps you to breathe out fully. Okay, that is the only criteria. And what are we calling this exercise? ये अच्छा, ये कब करना है? जैसे खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। आजकल तो लोग दवा भी खाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, या तो पहले या बाद में। उसी प्रकार से आपको ये वाला प्राणायाम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में करना है, उससे पहले। ओके? कितनी बारी करना है? 3 से 5 बारी कर लो। तुम्हारी श्रद्धा है, तुमको 11-21 बारी करना है, कर सकते हो आप। यू बिल्ड अप दैट नंबर, नथिंग रॉन्ग विद इट और राइट अबाउट इट, बट 3 to 5 टाइम्स यू डू इट, बट सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है जी? और बीच में कब कर सकते हो? कभी भी कर सकते हो। मतलब आप एंजाइटी में हो तो आप कर लो, आप फैटीग महसूस कर रहे हो तो कर लो। नाउ दिस इज नोन, दिस प्राणायामा इज नोन एज द मारिहुआना ऑफ द योगीज। इसमें गांजे का नशा है या जीवन का नशा मान लो। वो क्या करते हैं योगी, अपना आसन में बैठ करके अब वो निकल गया ब्रह्मांड की सैर में, अभी वो लौटने वाला नहीं है।
उसे पागल कुत्ते ने काटा है इस संसार में लौटने के लिए। वो वहीं घूमेगा, अपना मौज करेगा। अब जब मजबूरी होगी कि भाई अब तो लौटना ही है, बिकॉज यू नॉट लेफ्ट येट, दैट्स व्हेन दे कम बैक। तो दिस इज द marijuana ऑफ द योगीज। अब ऑब्वियसली मैं और आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, राइट। सो हम इस प्राणायाम का इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में या अपने जीवन में एक खास काम के लिए। वी आर कॉलिंग दिस द संकल्प प्राणायाम। ओके, द संकल्प प्राणायाम। अब ये क्या होता है संकल्प? सरल ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, संकल्प सिंपली मीन्स रेजोल्यूशन, टू टेक अ रिजॉल्व। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, ओके बनाते थे, कई लोग बनाते थे, कई लोग अभी भी बनाते हैं, और हम सबको पता है कि उसका क्या होता है फिलहाल तो। बट इन वैदिक विजडम दैट इज नॉट हाउ संकल्प वर्क्ड। इट वॉज फार मोर significant. Far more significant. I mean, it was like a atomic bomb. That is what the power of a sankalpa is. अब हिंदी में क्या है, हमने कहा यार अब हम तो इंग्लिश एजुकेशन वाले हो गए ना, तो भाषा तो भ्रष्ट हो गई, तो हमें रेजोल्यूशन याद रह गया। रेजोल्यूशन का क्या अर्थ है? वो जो हम साल में शुरू में लेते हैं, उसके बाद उसका कुछ नहीं होता, तो वो होता है रेजोल्यूशन। उसका हिंदी अनुवाद क्या है? संकल्प। तो हमें संकल्प में पता लग गया कि दम नहीं है, तो हम क्या करते हैं? दृढ़ संकल्प लेते हैं। तो भैया मत मारो कोड़े अपने आप को, तुम दृढ़ कर लो या संकल्प कर लो, जब तक अर्थ नहीं समझ में आएगा दम नहीं आएगा। तो क्या होता है जी संकल्प? देखो विचित्र बात, इवन द बिलीवर्स इन टुडेज टाइम, जो अपने घरों में होम हवन पूजा वगैरह कराते रहते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि बिना संकल्प के कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई होम हवन शुरू भी नहीं होती वेदों में। तो मंत्रोक्त वेदोक्त अगर आप कोई भी हवन होम कराते हो तो बिना संकल्प के वो शुरू ही नहीं होता। अब क्या है संस्कृत, अब अनदर बीमारी, ओके लेट अस टॉक अबाउट दिस बीमारी राइट इन द बिगिनिंग। जी हमें संस्कृत समझ में नहीं आती, मंत्रों का क्या लाभ है? अच्छा जी, आपको सारे भाषाओं के सारे शब्द मालूम है, सबका अर्थ मालूम है? संभव नहीं है। जिस भाषा में जिस शब्द का आपको अर्थ मालूम है, वो सिर्फ इसलिए मालूम है कि आपने कई साल उसके अभ्यास में लगा दिया। एज अ चाइल्ड you first learn to say a word, then you learn how to spell that word much later, and then you realize what it could mean, so comprehension comes much later. अब संस्कृत में मंत्र का मतलब ही नहीं पता तो क्या फायदा हुआ? मैंने ये देखा जी, इन लोगों को जीवन निकाल दिया, 60-70 साल निकाल दिए, इन्होंने कभी श्रम नहीं की, चेष्टा नहीं की जानने के लिए कि इस मंत्र का कोई मतलब हो भी सकता है। जबकि इफ यू आर बोर्न इन इंडिया, यू स्पीक अ नेटिव लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, लाइक द ब्रिटिश से वर्नाकुलर, more than 40% of Sanskrit is already in your language. आपको ऑलरेडी मालूम है, थोड़ा चेष्टा, थोड़ी सी मेहनत, यहाँ कर लो मेहनत, बहुत लाभ मिलेगा। आप जीवन में हर जगह मेहनत करने को तैयार हो, यहाँ कर लो, बहुत लाभ मिलेगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके। अगणित गुणगण भूषण, क्या मतलब हो सकता है यार इसका? संस्कृत है, अगणित गुणगण, गणित शब्द सुना होगा, अगणित, अनगिनत, अगणित जिसकी गिनती ना हो, अगणित। गुण, गुण क्या होता है? क्वालिटी। अगणित गुण गण। अब गण का दो मतलब हो सकता है, या तो जो गण लोग होते हैं वो हो सकता है, या गणना वाला गण भी हो सकता है। गुण गण। भूषण, भूषण तो नाम होता है हमारे समाज में, इसको क्या बोलोगे आप? आभूषण बोल सकते हो आप। तो भूषण तो आपको मालूम है। तो मुझे बताओ इस पूरे वाक्य में अगणित गुणगण भूषण,
कौन सा शब्द है जो तुम्हें नहीं आता और तुम बोल रहे हो मुझे तो समझ ही नहीं आता। अब इस अवधारणा को यहीं छोड़ दो। दिस इज अ नॉनसेंसिकल परसेप्शन दैट बिकेम अ फैड और अ फैशन फॉर good 70-80 years in this country. Don't continue with it. It is worthless. कल को जर्मन आके तुम्हारे बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे, फिर मुझे मत बोलना कि यार हमसे गलती हो गई, और ये होने वाला है, बता दूं। ऑलराइट, सो संकल्प क्या होता है जी? संकल्प तो पहले तो बताते हैं जी, होम के पहले क्या करते हो आप? सबसे पहले आचमन करते हो, ऐसे पानी लेते हो, जिसको नहीं पता उसको मतलब ध्यान ही नहीं देना। यू ब्लडी ब्राइब द पंडित यार टू फिनिश इट इन 1 hour, डोंट यू? एक तो शादी में बोल ही दिया पंडित ने, जूते की कीमत 11,000 है, पंडित की कीमत 1100 है। अब देखो पंडितों की भी गलती है, दे हैव मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड देयर प्रोफेशन बैड एनफ एंड लॉन्ग एनफ टू सफर दिस एंड। बट द ट्रूथ इज, फिर क्यों करा रहे हो यार? शादी में बिना फेरे के तुम शादी नहीं मानने को तैयार, लेकिन वो शादी में फेरे फटाफट करवा दो जी। पंडित जी 200 रुपये और रख लो, फटाफट कर लो, ये मंत्र काट दो। तुम कौन हो भाई? एनीवे, आपने पूजा अरेंज कर दी जी। क्या वो कौन सा होता है यार वो अरे यार कसम वसम खा के जो अच्छा होता है उसके बाद कराते हैं। प्रीति जी कौन सा होता है? अभी जो आप भी तो गए थे ऊपर, अरे यार विष्णु भगवान का होता है यार, अभी यहाँ भी तो कराया था 3री मंजिल पे। अरे आप में से किसी को याद है तो बता सकते हो? किसी को याद है? मैं देखना चाहता हूँ कोई सोच। सत्यनारायण कथा। हाँ, वेरी गुड, वंडरफुल। या सत्यनारायण कथा, तो वो तो कराते रहते लोग। क्यों कराते हैं यार? 4 लोगों को बुला के और जलाते हैं कि जो हमने तरक्की कर लिया, आप भी करा लो। मीन मोर देन 80% ऑफ सत्यनारायण कथा इज सेलिंग यू द आइडिया ऑफ डूइंग कथा। कथा में ऐसा कुछ नहीं है। 80%, मोर देन 80% ऑफ इट इज सेलिंग यू द आइडिया एज टू व्हाई यू वुड वांट टू डू सत्यनारायण कथा। कोई बात नहीं, दैट्स देयर सेलिंग टेक्निक, मार्केटिंग गिमिक, डोंट बॉदर। उसमें भी संकल्प के बिना शुरू नहीं करते आप। तो पहले आचमन करते हो, फिर क्या करते हो? प्राणायाम करते हो, उसके बाद संकल्प लेते हो जी मैं फला 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 यहाँ पैदा हुआ, इस मनवंतर में, इस कुल का वगैरह वगैरह, बहुत लंबा चौड़ा संस्कृत में पंडित जी में कुछ बोलते हैं, हम भी उसका साथ देते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। तो हमको तो पता ही नहीं है संकल्प क्या होता है। करते हैं हम, लेकिन हमें नहीं पता क्या होता है। अब यहाँ अर्थ समझ लेते हैं संकल्प क्या होता है। संकल्प इज योर कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंट। पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर हिंदी में समझाऊंगा। द कम्युनिकेशन, योर कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंट टू द कॉन्शियस, द सबकॉन्शियस एंड द सुपर कॉन्शियस। यार इससे ज़्यादा सटीक टेक्निक कहाँ मिलेगा तुम्हें, ये बताओ। कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंट, इंटेंट मतलब वो हमारा उद्देश्य, हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा। ना, बेकार की बातें हैं। ये तो उड़ती चिड़िया है, यहाँ उड़ी वहाँ निकल गई। ना, नियत, हिंदी में समझ लो, नियत। तुम ये कह रहे हो जब भी संकल्प लेते हो, तुम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस को ये बता रहे हो कि मैं इस नियत से इस कार्य को करने बैठा हूं या बैठी हूं, तो हुआ संकल्प। तो अब उसके बाद भी आपको लगता है दृढ़ संकल्प की जरूरत है आपको? बिल्कुल भी नहीं। अब क्या है ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, इसको एक और रूप से समझ लेते हैं। भूः भुवः स्वः। अब लोग कह रहे हैं यार ये हम कहाँ आ गए, प्राणायाम करा रहे हो, संस्कृत सिखा रहे हो। एक्चुअली क्या है, कुछ फ्रेजेस अगर आप उड़ते उड़ते भी सुन लोगे ना तो आपके बड़े काम आएगी बाद में। ओके,
Okay, so that's why I'm bothering to put you through this suffering. Okay, some people. So bhuhu, bhuvaha, swaha, the three realms again: sthula, gross, सूक्ष्म, subtle, कारण, causal, the three realms. तो तुम्हारे पास एक मंत्र है ओम, कैसे लिखते हो, लिख के देख लो, ये वो और कुछ नहीं है, बस ये वही है. तुम्हें ऐसा फॉर्मूला पकड़ा दिया, फॉर्मूला फॉर मैनिफेस्टिंग ऑल योर डिजायर्स, योर ड्रीम्स, योर एस्पिरेशंस. ओम इज द ओनली मंत्र यू नीड. वो बोल ही ये रहे हैं कि भैया यही प्रक्रिया है जिससे तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. तुम संकल्प तो करो. तो ये जो प्राणायाम हम कर रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं संकल्प प्राणायाम. आप दिन में 3 बार ही संकल्प करोगे, मैं आपको वादा करता हूं 3 बार आप संकल्प, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंट, अपनी नियत. अगर आप अपने त्रिभुवन त्रिपुर को कम्युनिकेट करोगे सच्चे दिल से, तो मैं देखना चाहता हूं कि आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो पूरी ना हो. समय लग सकता है, क्या बोलते हैं वो, इट वोंट हैपन इन अ हरी बट इट हैपन क्विकली. Yeah, we'll talk about this hurry and quickly much later in the program probably, but it happens. तो आपको सबसे पहले संकल्प करना है. क्या है संकल्प? ये that it is my desire to transform the way I am. Whether your issue is health, whether your issue is something you're seeking in a relationship, whether your issue is spiritual growth, I don't know what it means. Okay, we may not be talking about the same thing, but whatever it is at this point of time, we'll go with that. Whether it is a career path that you're looking at, whether it is a business growth you're looking at, whatever your sankalpa means, भाई शरीर से तो बनेगा ना. आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, आपको लगता है आपको आध्यात्मिक प्रगति मिल जाएगी. सॉरी यार, नहीं मिलती. We are not only head. The head and the body, the mind and the body is part of the same system. One can't reach where the other can't go. So the sankalpa pranayam, this is all you need at this point of time. अगर आप हफ्ते 10 दिन कर लोगे, यकीन मान लो, आपको यकीन हो जाएगा कि अरे इतना ही करना होता है. What the hell? इतना ही नहीं करना होता. लेकिन ये शुरुआत है. कैसी शुरुआत है? नहीं 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 नहीं, ये वैसा इनॉग्रल शुरुआत नहीं है. ये गहराई में उतरने की शुरुआत है. गहराई में उतरने की शुरुआत है. संकल्प प्राणायाम दिन में 3 बार करो. कह लो अभी भी टाइम नहीं मिल रहा, मैं बताता हूँ. जाते हो ना अपने आसन में बैठने के लिए, when you go into in there to sit on your throne in the morning, फोन मत लेके जाओ, वहां बैठ के कर लो संकल्प. It will actually help you with the deed, the task that you are out there to do. You think I am kidding? No, I am not kidding. I am not joking. इससे उसमें भी फर्क पड़ता है. इसके बारे में चर्चा हम बाद में करते रहेंगे. संकल्प प्राणायाम इस वक्त आपको दिन में 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम दवाई की जैसे संकल्प प्राणायाम करना है. ओके. उसके अलावा आप कभी भी कर सकते हो. थके हुए हो, फटीग महसूस कर रहे हो, गर्मी ज़्यादा लग रही है, कर लो. 3 बार संकल्प प्राणायाम कर लो. आहा, ऐसा नहीं कि अब ठंडी हवा निकलेगी, बट आपको गर्मी लगनी बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी. Okay, you will not be affected so badly by the environment. Okay, so that's the first lesson. Subsequently, now what's going to happen? आज तो बहुत लेक्चर ज़्यादा था. क्यों? Because we are starting a journey. It's an ongoing conversation. तो आज मैंने बातें ज़्यादा करी, सिखाया आपको कम. ठीक है. हम क्या करेंगे कल से मैं
I think 8:30. 8:30 बजे I will be live. I will post the link on the group. We will figure out many other methods where you can access these videos in case you miss the live classes. That you can access these videos and keep in touch with the program. तो 8:30 बजे मैं कल सुबह बैठूंगा. तो हम क्या करेंगे, रोज़ एक क्रिया सीखेंगे. जैसे आज हमने संकल्प प्राणायाम सीखा, तो कल हम शुरुआत संकल्प प्राणायाम से करेंगे, फिर एक चीज़ और सीखेंगे बस. ठीक है. सब्सिक्वेंटली द नेक्स्ट डे वी विल ऐड संकल्प प्राणायाम. उसके बाद जो कल सीखा वो, और थर्ड चीज़ हम ऐड करेंगे परसों. करते करते हफ्ते भर में यू विल हैव व्हाट आई वुड लाइक टू कॉल एज ए ड्रिल. ड्रिल क्या होता है, जो वो हम स्कूल में पीटी करते हैं ना, आज भी कराते हैं यार पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग. बच्चों को क्या ज़रूरत है यार, वो वैसे ही बड़े लचीले हैं. उनको कुछ ऐसा कराओ कि प्रतिभा बढ़े. उनको तभी से लगने लगता हम तो बुढ़े हैं, हमसे तो कुछ भी ना होगा. एनीवे, so we'll build a drill. So within a week's time we would have a drill that we will practice every day and learn a bit of something else. Okay? The whole journey of pranayam is actually very transformational. मैंने आपको अभी शुरू में कहा था भाई 30 साल से ज़्यादा सिगरेट पीता हुआ व्यक्ति आज प्राणायाम कैसे सिखा रहा है. तो यहाँ पे भी आप में से भी कई लोग स्मोकर्स बैठे हैं, तो मैंने आप में से किसी को नहीं कहा कि सिगरेट छोड़ दो. ठीक है, मैं तो किसी को नहीं कहता कुछ भी छोड़ दो. मैं बस आपको ये कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते चले जाओ. एक दिन सिगरेट जैसा नशा अगर सांस लेने में आ जाए, उसके बाद कौन बेवकूफ़ है यार जो 300 रुपये पैकेट खर्चेगा. कोई बोल रहा है 500. अच्छा, 500 रुपये आई एम आउट ऑफ टच. आई डोंट नो व्हाट इट कॉस्ट टुडे. ओके, so that's what the science of breathing has to offer to you. Your addictions don't stand a chance. Your negativity in life does not stand a chance. ये सब लक्षण हैं एक वीक सिस्टम का. उसको पहले स्ट्रेंथ दे दो, अपने आप सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है. मैं बोल रहा हूँ कोई ध्यान मत करो, सिर्फ संकल्प प्राणायाम करो. कोई मुश्किल काम नहीं है. करके देखो, 4 दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा. ठीक है जी. सो विद दैट आई विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे.